الكريم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والقرآن الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في موضع آخر: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم و معزز و مکرم حاضرین و سامعین اکرام اور ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے اور اس کے بیش بہا قیمتی نعمتوں میں سے ایک بہت ہی متبرک، مقدس اور عظیم نعمت اللہ رب العالمین کا ہماری جانوں کے اوپر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیر اور خیر سے جڑی ایسے کاموں میں ملوث کیا جو نہ صرف یہ کہ ہماری دنیاوی زندگی کے اندر اثر انداز ہو سکتی ہے، بلکہ اس سے ہماری آخرت پر گہرا اثر پڑے۔ یقیناً اللہ رب العالمین کی ذات رحم کرنے والی ہے، ارحم الراحمین ہے، عطا کرنے والی ہے، نوازنے والی ہے، ہدایت دینے والی ہے۔ ہدایت کی سرچشمہ میں یہ بھی ایک بہترین موقع ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم امت مسلمہ میں سے چنندہ نوجوانوں کو، افراد کو، مسلمانوں کو، مومنوں کو اس کار خیر کے لیے پسند کریں۔ اللہ سے دعا کرے کہ پروردگار عالم الہ العالمین جو بھی نیکیاں ہماری ذات سے، ہماری طرف سے، چاہے جس شکل میں ہو، چاہے جس صورت میں ہو، سرزد ہوئی، اللہ کو اس کو قبول کرے، اور اس کے عوض میں جو گناہ و معصیت اور برائیاں ہم سے جانے یا انجانے میں سرزد ہوئی ہے، اللہ تو اس کو درگزر فرمائے، آمین رب العالمین۔ انشاءاللہ العزیز آج کے درس میں سورۃ الانعام آیت نمبر 60 سے ترجمہ و تفسیر آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانعام آیت نمبر 60 کے اندر بیان کیا: وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، وہی وہ ذات ہیں جو تم کو رات میں وفات دے دیتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، اور دین کی روشنی میں، دین کے اجالے میں جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اللہ جانتا ہے۔ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ، پھر اللہ رب العالمین تم کو دوبارہ اٹھائے گا، زندہ کرے گا۔ لِيُقْضَىٰ أَجْلٌ مُّسَمًّى، تاکہ وقت معین مکمل ہو جائے، پورا ہو جائے۔ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ، پھر تم سب کو وہ اپنی طرف لوٹائے گا۔ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر جو کچھ بھی تم عمل کرتے رہے ہو اس کی تم کو پوری پوری خبر دے گا۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 60۔ اس آیت مذکورہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ایک عظیم نعمت کا تذکرہ کیا، اور اس نعمت کے ساتھ جس لفظ کا استعمال کیا وہ ہے یتوفا۔ توفا، یتوفا کا مطلب ہوتا ہے وفات پانا۔ اردو میں وفات کہتے ہیں، توفا التا، عربی کے اندر توفا یا یتوفا جو مضارع کا صیغہ ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ وعلیکم السلام جس نعمت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ نعمت ہے نیند۔ قرآن میں سورہ نبا کے اندر جو تیسرے پارہ میں شروع کرتے ہیں اما یتساءلون، اس کو اما پارہ بھی کہا جاتا ہے،
नबा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस सूरत के अंदर कहा वजअलना लैला लिबासा। लैल कहते हैं अरबी के अंदर रात को, और नहार कहते हैं दिन को। उर्दू में भी लैल नहार इस्तेमाल होता है, लेकिन असल में ये अरबी लफ्ज़ है। अल्लाह ने कहा वह हुवल्लज़ी यतवफ़्फ़ाकुम बिल्लैल, वही वो ज़ात है जो तुमको रात में मौत देता है, वफ़ात देता है। उमूमन मौत का लफ्ज़ इस्तेमाल किस पर होता है? मौत का मतलब ये होता है कि जो आदमी दुनिया को छोड़कर आलम बरज़ख की तरफ निकल जाए, या वो शख्स, वो इंसान, वो अफराद जिसके जिस्म से रूह निकल जाए, उसको हम कहते हो आदमी मर गया। रूह निकलने का नाम मौत। जैसे हमारे जिस्मों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह रूह मौजूद है, रूह मौजूद है तो हम एक्टिव हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। लेकिन जब रूह निकल जाती है, रूह परवास कर जाती है, तो अब उस जिस्म का कोई मायने नहीं रहता, कोई अहमियत नहीं रहती। आप इसमें एक बात सोच कर देखें कि अल्लाह ने कितना खूबसूरत इंसान को बनाया है। चेहरे पर गोश्त चढ़ाया हड्डियों के ऊपर, फिर उसके ऊपर चमड़ा चढ़ाया, जिल्द जिसको कहते हैं। चीज़ें देख ले, आप अपने हाथों को देख ले, उंगलियों को देख ले, बदन को देख ले, हाथ पाँव को देख ले, आँख नाक कान को देख ले, और अब तसव्वुर करे कि ऐसे कितने हमारे साथी थे जो साथ में थे, उठते थे, बैठते थे, खाते थे, पीते थे। हम नहाते भी तो अपने बदन के जिल्द को, चमड़े को देखते, कहीं मैला को, चेहरा तो नहीं, कहीं दाग धब्बे तो नहीं, कहीं गंदगी तो नहीं, साफ करते। अभी हमारी मौत हो जाए हम लोगों की, तो यही हाथ कब्र में पड़ा रहेगा, उसमें यही पाँव कब्र में पड़ा रहेगा, यही चेहरा जिसके बनाव सिंगार की नन्ना बनाने कितने पैसे खर्च करते हैं और फिक्र करते हैं, कब्र की मिट्टी में इस तरह पड़े हैं। क्या अहमियत है हमारे जिस्म की? एक इंसान के जिस्म की क्या अहमियत? कुछ भी अहमियत नहीं। पलक झपकते हम कहाँ चले जाएंगे? मिट्टी के अंदर। मिट्टी पे लेटा गए, छोड़ दिया जाएगा हमें। और अल्लाह तबारक व तआला ने उसी मौत का तज़किरा नींद की शक्ल में किया। यानी एक मोमिन को ये भी गुमान करना चाहिए कि हम रोजाना मर रहे हैं, और वो मरने की सूरत क्या है? हमारी नींद। जैसे एक इंसान मर जाता है तो उसे कुछ सुनाई नहीं देता, उसे कुछ दिखाई नहीं देता, और उसे कुछ समझ नहीं आता, इसलिए कि वो इनडायरेक्टली मर चुका है ना। आप कुछ भी कर ले, आना जाना कर, उसे कुछ पता नहीं, रात में क्या वारदात हुई उसे कुछ पता नहीं। हाँ, दिन में जगे हुए कुछ आवाज़ आएगी तो आँखें चल जाएगी, कान डायरेक्शन उधर चला जाएगा, इधर देखेंगे उधर देखेंगे, लेकिन नींद में कुछ पता नहीं चलता। सुबह होने पर खबर देते कि चोर आया फला के घर में, कुछ नहीं पता। अल्लाह ने उसी नींद के बारे में कहा हुआ वहुवल्लज़ी यतवफ़्फ़ाकुम बिल्लैल। लैल का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर दिया कि मौत का ताल्लुक दिन रात से नहीं। अगर तर्जुमा करें, लफ्ज़ी तर्जुमा, और वही ज़ात जो तुमको रात में वफ़ात देता है, तो वफ़ात का ताल्लुक रात से नहीं है। कभी भी किसी को मौत आ सकती है, कोई रात में इंतकाल कर जाता है, कोई सुबह में, कोई दिन में, कोई दोपहर में, कोई शाम में, है कि नहीं। लेकिन अल्लाह ताला अपनी एक अजीम नेमत का जिक्र कर रहा है, तो शायद हम उसको नज़रअंदाज किए। वैसे तो अल्लाह की बेशुमार नेमतें, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। हम कौन कौन सी नेमत को झुटलाएंगे? अल्लाह कितनी नेमतों को झुटलाएंगे, कहाँ तक झुटलाएंगे? अल्लाह ने नींद के बारे में कहा कि जब इंसान रात की इशा की नमाज पढ़कर, खाना खाकर अपने बिस्तर के बीच सोता है, तो अल्लाह ताला उसके जिस्म से उसको रूह को निकाल देता है। वो समझता है कि हम सो रहे हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको वफ़ात दे दिया। मिनी वफ़ात कह सकते हैं इसको, छोटी वफ़ात, मर चुका है, उसे कोई खबर नहीं। फिर अल्लाह कह रहा है वयअलमु मा जरहतुम बिन्नहार। नहार कहते हैं दिन को, और दिन के उजाले में हम जो कुछ करते हैं अल्लाह उसको जानता है, अल्लाह ताला उसको जानता है। यहाँ एक कनेक्शन देखें कि अल्लाह ताला ने रात की नींद को मौत जो कहा, ये इसलिए कहा कि बहुत से ऐसे वारदात हुए हैं, होते रहते हैं, कि कोई फैमिली है, कोई घराना है, कोई शख्स है, रात में सोया, सुबह उठा ही नहीं, मर गया, काफ़ी लेट हो गया, काफ़ी ताख़ीर हो गई, और रूटीन के खिलाफ जब हुआ, ऐसा होता है ना, हर आदमी को घर वाले उसकी रूटीन जानते हैं, कब उठता है, कब सोता है, क्या करता है उठने के बाद, जब नहीं उठता है तो कैसे उसके रिएक्शन होते हैं। जब कुछ भी हरकत नहीं मिली तो दरवाजे को पीटा जाता है, उसके बाद तोड़ा जाता है, पता चला कि मर चुका है, इसे हम जगा रहे थे तो दुनिया से जा चुका है। तो ये अल्लाह के इख्तियार में है कि नहीं? अगर रात को हम सोएं
अगर अल्लाह चाहे सुबह ना उठाए तो कैसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन अल्लाह हमको उठा दे रहा है। अल्लाह ताला हमको उठा दे रहा है। असल में मुफस्सिर में यही लफ्ज़ लिखा है समझने के लिए कि एक मोमिन इस पर अगर गौर करे तो वो रो पड़ेगा, अल्लाह के करीब जा पड़ेगा। हमारे दिन की जो शुरुआत होती है ना, अगर हम दुनियावी एतबार से देखें तो हम सवेरे उठते हैं, बाथरूम जाते हैं, लैट्रिन बाथरूम जाते हैं, उसके बाद ब्रश करते हैं, फिर नाश्ता करते हैं, फिर अपनी ड्यूटी पे जाते हैं, ये हम समझते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सुबह सवेरे एक इबादत को फर्ज किया है तो मेरा बंदा जब सोकर उठे तो पहले फजर की नमाज पढ़े, यानी ये नींद की शुक्राने की नमाज हो गई है। फजर को आप ये भी कह सकते हैं कि एक नेमत अल्लाह ने दी कि सुलाया लेकिन उठा दिया, परमानेंट नहीं सुलाया। वफात का अल्लाह ने वो अव्वल्लज़ी यतवफ़्फ़ाकुम बिल्लैल, वो अल्लाह जो तुमको रात में मौत देता है। ये मौत से अल्लाह ने दुनियावी जो मौत होती है, हकीकी जो मौत, उस मौत के बाद जिंदगी नहीं, ये बात जानते हैं हम सब। तो एक बार मर गया, अल्लाह ने ये कानून बनाया नहीं कि दोबारा जिंदा हो, ये हम सबके साथ मामला है। और हमसे पहले जो थे उनके साथ भी मामला हुआ। हम तमन्नाएं कर सकते हैं, ख्वाहिशात कर सकते हैं, आरजू कर सकते हैं कि शायद कब्र से निकल कर आ जाए क्योंकि अपने दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन हकीकत यह है कि मोमिन हकीकत को कबूल करता है। अल्लाह ताला ने सुबह के वक्त नमाज को जो फर्ज किया ना, बहुत लोग सवाल करते क्या जरूरत थी इतनी सुबह? अभी तो आप समझ लीजिए कि 3:45 में अज़ान हो रही, लोग सोते हैं 2 बजे, 2 घंटे में उठना नामुमकिन है, मुश्किल है। लोग सोचते हैं कि आखिर अल्लाह ने इतनी सुबह नमाज क्यों फर्ज कर दिया? तो अल्लाह ने एक जवाब इसका आज की आयत में है। इसलिए अल्लाह ने फर्ज किया कि अल्लाह ने हमें रात को जो नींद दी ना, वो एक मौत थी, अल्लाह ने मौत के बाद उठा दिया, जगा दिया अल्लाह ने। जब अल्लाह ने जगा दिया यानी जिंदगी बच गई हमारी। एक मरीज को बचाने के लाखों करोड़ों हम खर्च कर रहे हैं ताकि बच जाए, मौत ना हो, और अल्लाह ने फ्री में बचा दिया। रात को मौत दिया और फजर में जगा दिया, और इसके बाद भी हम अगर नमाज ना पढ़े सुबह की, उसका मतलब कि आपको एहसास नहीं अल्लाह की नेमतों का कि अल्लाह को हम हल्के में लिए हुए हैं तो कुछ कर नहीं सकता, तो इससे डरने की जरूरत है। सबसे बड़ा मैसेज अल्लाह ने यहाँ पर दिया। आगे अल्लाह ने कहा वयअलमु मा जरहतुम बिन्नहार, और दिन के उजाले में, दिन की रोशनी में जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसको जानता है। अल्लाह को सब खबर है कि हमारी सुबह से लेकर शाम तक की एक्टिविटी क्या है, कितना अल्लाह से डर रहे हैं, कितना अल्लाह की तरफ झुके हुए हैं, कितनी फिक्र लगी हुई अपने दीन की, अपने ईमान की, ये सब अल्लाह को पता है। दिन के उजाले में हम हलाल रिस्क कमा रहे हैं कि हराम रिस्क कमा रहे हैं, दिन के उजाले में हम धोखे दे रहे हैं, लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, खैर कर रहे हैं कि शर कर रहे हैं, सब अल्लाह ताला को मालूम है, जानता है अल्लाह ताला। सुम्मा यबअसुकुम फीही, फिर अल्लाह तुमको दोबारा जिंदा करता है, यानी रात को सोने के बाद सुबह में उठाने का मतलब। ये जो यबअसुकुम मतलब होता है दोबारा उठाना, ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जब क़यामत के दिन सुर्ख फूंका जाएगा। पहली सुर्ख में सारे लोग मर जाएंगे, और जब दूसरी सुर्ख फूंकी जाएगी तो सारे लोग जी उठेंगे और अपने कब्रों से निकल खड़े होंगे और मैदाने महशर की तरफ चल पड़ेंगे। उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है बासा यबअसु, दोबारा जिंदा होना। और अल्लाह ने इसी लफ्ज़ को सुबह मॉर्निंग के लिए इस्तेमाल किया, जब हम दोबारा जिंदा उठते, मतलब दोबारा सोकर उठते हैं। लफ्ज़ पर गौर करें, अल्लाह ने लफ्ज़ को नहीं बदला, लफ्ज़ वही जो लफ्ज़ मौत के लिए इस्तेमाल होता है वही लफ्ज़ अल्लाह ने दिन के लिए इस्तेमाल कर दिया। जो लफ्ज़ अल्लाह ने दोबारा जिंदा करने के लिए इस्तेमाल किया कुरान के अंदर, वही लफ्ज़ को अल्लाह ने दोबारा उठने को इस्तेमाल कर दिया। इसके मतलब आप इस आयत की अहमियत को समझे, मुसलमान समझे कि अल्लाह ताला कितनी अजीम नेमतें दे रहा है, रोजाना दे रहा है, रोजाना, एक दिन की बात नहीं है। अल्लाह रोजाना ये नेमतें दे रहा है। रोजाना हम सोते हैं यानी मरते हैं, रोजाना हम उठते हैं मतलब जी उठते हैं दोबारा। दोबारा क्यों अल्लाह रब्बुल आलमीन उठाता है? लियुक़ज़ा अजलुम मुसम्मा, लियुक़ज़ा अजलुम मुसम्मा, अल्लाह इसलिए दोबारा उठाता है ताकि जो मुअय्यन वक्त है, मुअय्यन वक्त से मतलब आखिरत, दूसरी हकीकी मौत, उम्र, जिंदगी, हम उसको मुकम्मल करें। अल्लाह दोबारा इसलिए उठाता है कि सबकी उम्रें मुकर्रर है, कौन दुनिया के अंदर कितने साल तक जिंदा रहेगा, उसको पूरा करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला दोबारा उठा देगा। तो देखो अभी तुम्हारी तकदीर में मौत नहीं है, इसीलिए अल्लाह उठा देगा। जब मौत का वक्त आ जाएगा तो कोई नहीं उठा पाएगा, है ना, कोई नहीं उठा पाएगा। अल्लाह ने कहा कि दोबारा, इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन दोबारा उठा ताकि वक्त मुकर्रर जो है, जो मुकर्रर किया गया है, मुतय्यन किया गया है, वो
وہ مکمل ہو جائے، پورا ہو جائے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ یعنی ہم سوئے اور صبح اٹھ گئے. صبح اللہ اس لیے اٹھایا کہ زندگی پورا کرنا. ہم اس طریقے سے روزانہ چلتے رہیں گے جب تک کہ ہماری موت کا وقت نہ آ جائے. اس کے بعد ایک وقت آ جائے کہ ہم سب مر جائیں. اس کے بعد کیا ہوگا؟ مر جائیں گے تو عام طور پہ کیا ہوگا؟ مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے؟ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم یہاں سے جب کوچ کریں گے، مطلب انتقال کریں، انتقال کیا ہے؟ منتقل ہونا، ٹرانسفر. اس دنیا سے ہم چل جائیں گے عالم برزخ، جہاں قبر کی گھڑیاں ہیں، قبر کے سوالات ہیں. ہم اس دنیا میں چلے جائیں گے. دیکھنے والوں کو لگے گا کہ جو دفنایا گیا قبر میں وہی دنیا ہے، لیکن حقیقت میں وہ دنیا نہیں ہے. آپ قبر کو ایک مہینے بعد کھودیں گے تو آدمی مل جائے گا پوری، اس کی باڈی خراب ہو گئی ہوگی، لیکن وہ دنیا نہیں ہے. اب یہ دنیا ہے ہی نہیں جہاں پر گھڑیاں ہیں، ٹائمنگ ہے، جہاز اڑ رہے ہیں، پانی بہ رہی ہے، کھانا کھا رہے ہیں، سب ایک دم الگ دنیا میں چلے گا. عالمی برتن اس کو کہا جاتا ہے. وہاں پہ کیا ہوگا؟ 40 قدم ابھی مطلب کہ مسلمان مٹی لے کر لوٹیں گے نہیں گھر والے، فرشتے آ جائیں گے، اٹھا کر بیٹھا دیں گے. اب آپ 40 قدم جانے کے بعد قبر کھودیں گے تو آپ دیکھیں گے تو لیٹا ہوا. آپ کہیں گے کرے حدیث میں ہے کہ 40 قدم نہیں ہو جاتا ہے تو فرشتے آ جاتے ہیں، مڑ کر رکھیے اور اٹھا دیتے ہیں مردے کو. کہاں اٹھا ہوا ہے؟ کہ لیٹا ہوا ہے. یہ دنیا ہے ہی نہیں. وہ مردہ اب اس دنیا میں ہے ہی نہیں. ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو اس دنیا میں نہیں رہیں گے، عالم برزخ میں چلے جائیں گے. اب وہاں ہمارے قبر کا معاملہ ہے، سوالات ہیں، جوابات ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ مر جائیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اگر کوئی عذاب قبر کا انکار کر رہا ہے مطلب کہ وہ کفر میں چلا ہے. اگر کوئی عالم برزخ کا انکار کر رہا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے وہ کفر میں چلا ہے. اگر کوئی ایسا کرتا ہے کہ نہیں یہ سب چیزیں کس سے کہانیاں ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو کفر میں چلا جائے گا. انکار مطلب ہم آخرت کا انکار کریں گے. ہم آخرت کا انکار کریں. بہت سے لوگ آج کا انکار کر بیٹھے مسلمانوں میں سے نہیں مانتے کہ نہیں یہ سب تو غیبی چیزیں ہیں. کس نے دیکھا ہے؟ کس نے دیکھا؟ جو غیبی چیزیں ہیں تو نظر نہیں آ رہا ہے، ہو نہیں سکتا، اس سے کہانیاں ہیں، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. لیکن اگر مسلمان اس پر ڈاؤٹ کیا مطلب وہ کفر میں ہے. اپنے ایمان کا جائزہ لے، ایمان کی تجدید کرے. اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ کہہ رہا ہے جب آدمی مر جائے گا، اپنی میعاد مقرر جو کی گئی ہے اس کو مکمل کر لے گا تو کیا ہوگا اس کے بعد؟ ثم الیہ مرجعکم، پھر تم سب میری طرف لوٹائے جاؤ. اب ہر آدمی اللہ کی طرف چلا جائے گا. آج اللہ سے بھاگ رہے کہ اللہ کی طرف جانا ہے. کتنا بھاگے، کتنا بھاگے. اللہ کہہ رہا ہے ثم الیہ، اسی کی طرف، پھر اسی کی طرف تم سب کو لوٹ جانا ہے. تم سب کو کہاں جانا ہے؟ اسی کی طرف، اللہ کی طرف. جس اللہ سے دنیا میں بھاگ رہے ہیں لوٹ کے اسی اللہ کے پاس جانا ہے. یہ آیات جو ہے صحابہ پڑھتے تو رو دیتے، آنکھ سے آنسو گر جاتی تھی کہ ہم بتائیے دنیا میں نہ جانے کتنے لوگوں کو خوش کرتے چلے جا رہے ہیں، لوٹ کے جانا اللہ کے پاس. اللہ کے پاس جانا، ہم بھی جائیں گے، جن کو خوش کر رہے وہ بھی جائیں گے. سب ایک ہی مقام پر جائیں گے اور وہاں پہ انصاف ہوگا. حشر کا میدان ہوگا، انصاف کا پیمانہ ہوگا، ترازو ہوگا جہاں پر صرف انصاف کی جائے گی. اور دنیا کا معاملہ نہیں ہے کہ لے دے کے کام نکال لے، وہاں پر بس انصاف ہوگا. انصاف ایسا ہوگا کہ زبان بند کر دی جائے گی، آنکھیں بولیں گے، ہاتھ بولیں گے، کان بولیں گے، ناک بولیں گے. جو اعضا ہمارے میں جو پارٹس ہے باڈی کے، جنہوں نے جو نکیا جو برائیاں کی اس پارٹ سے، وہی جواب دیں. زبان پہ تالا لگ جائے. اللہ کہہ رہے ثم الیہ مرجعکم، پھر تم سب کو میری طرف لوٹ کے آنا ہے. اب جب لوٹ کے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ ابھی بھی ایک سوال ہے. ٹھیک ہے لوٹیں گے، سب کو معلوم ہے کہ آئے اللہ کی طرف سے جائیں گے وہی اللہ کی طرف سے. جب اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے دنیا میں جائیں گے تو کس کے پاس جائیں گے؟ آخرت کے پاس جائیں گے. اب ایک سوال پیدا ہوگا کہ جائیں گے تو ہوگا کیا وہاں پہ؟ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ثم پھر ینبئکم، تم سب کو اللہ خبر دے گا. تم سب کو اللہ کیا دے گا؟ خبر دے گا. کس چیز کی خبر دے گا؟ خبر دے گا بما کنتم تعملون، جو تم دنیا میں عمل کرتے تھے. جو تم دنیا میں عمل کرتے تھے اللہ تم کو کھول کھول کر دکھا دے گا. آج کل کے زمانے میں سی سی ٹی وی کیمرہ آیا ہے، اللہ کا کیمرہ بہت دنوں سے چلے گا، پھر دنیا کا ہے. جب ٹیکنالوجی نہیں تھی تو اللہ کی ٹیکنالوجی چل رہی ہے. ایک ایک چیز جو ہے اللہ رب العالمین یہاں موجود ہے. ٹیکنالوجی موجود ہے اللہ کی. آج ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے، اللہ کی ٹیکنالوجی شروع سے چل رہی ہے، اس میں رہے گی. سب اللہ کھول کھول کے دکھا دے گا. ہم تو بھول چکے ہیں. مثال کے طور پہ ایک آدمی 70 سال کی عمر میں وفات پائے نا. اب 70 سال جاتے جاتے آدمی بھول جاتا ہے بچپن کی چیزوں کو، جوانی کی چیزوں کو. ہم ہی لوگ سے اگر 4 سال پہلے ہی کوئی بات چھوٹی چھوٹی بات پوچھ لے تو ہم کو یاد نہیں ہے. بڑی چیزیں یاد ہیں، چھوٹی چیزیں یاد نہیں ہیں، لیکن اللہ کو سب یاد ہے. ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، جو تم کام کر رہے ہو دنیا میں، جو عمل کیے ہو، اللہ تم کو اس کے بارے میں کیا کر دے گا؟ باخبر کر دے گا. اب سارا کچا چٹھا جو ہے وہ ہمارے پاس آ جائے گا.
हम सब चीज़ों को देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, सब अल्लाह सुनाएगा। इतनी बड़ी बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह अनआम आयत नंबर 60 के अंदर बयान किया, जो अल्फाज का इस्तेमाल किया। मकसद क्या है बयान करने का? कि हमारे ईमान जो है जाग जाए, जो अपने आप को हम समझा बुझा कर रखे हुए थे, चलो उस कदर भी अगर अमाल नहीं हुए, कुछ भी हो जाएंगे तो अल्लाह माफ़ कर देगा, या थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाएगी। सवाल है कि गड़बड़ क्यों हो? आप अपनी ज़िंदगी को ऐसे समझें कि जैसे हम कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हैं, तो क्या कभी सोचते हैं थोड़ी बड़ी गड़बड़ हो जाएगी तो काम हो जाएगा? उसमें नेगेटिव मार्क्स है, अगर गलत जवाब देंगे तो कुछ नेगेटिव मार्क्स भी कटेगा, है कि नहीं? ऐसा होता है ना। कंपटीशन के एग्ज़ाम में हम रिस्क नहीं ले सकते, ये नहीं सोच सकते कि चलो 2-4 गलतियाँ हो जाएंगी और उसके बाद ये भी हो जाएगा तो कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। इंसान की ज़िंदगी उसी तरीके से, जो अपने आप को हम बहलाए हुए हैं, फुसलाए हुए हैं, समझाए हुए हैं, क्या नहीं कोई बात नहीं है, चलो 2-4 गलतियाँ हो जाएंगी, उससे क्या, हाँ उससे क्या बिगड़ने वाला है, बहुत अमाल किए हुए हैं। तो हमें ये चीज़ें सहाबा की ज़िंदगी में देखनी चाहिए, सहाबा की ज़िंदगी में देखनी चाहिए कि हम उनके जैसा अमाल दुनिया में कोई शख्सियत नहीं कर सकती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सूरह ज़मीन पर सबसे मुबारक शख्सियत वही थे सहाबा किराम, और इस कदर शख्सियत थे कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हुक्म पर न सिर्फ अपने माल बल्कि अपनी जान को कुर्बान करने के लिए तैयार रहते थे। न उन्होंने कभी माली कुर्बानी के पीछे अपने आप को हटाया, और न कभी जान की आहुति देने से, बलिदान देने से अपने आप को पीछे किया, बल्कि वो शहादत की मौत की तमन्ना करते थे, दुआ करते थे अल्लाह से, अल्लाह शहीद की मौत अता करे। उनकी जैसा हम नहीं है, लेकिन उनकी सोच ऐसी नहीं थी, सहाबा की ऐसी सोच नहीं थी, चलो कुछ कमी भी हो जाएगी। सवाल है क्यों हो, कमी होगी क्यों, ये असल मुद्दा है। और जब इस पर हम फोकस करेंगे, ध्यान देंगे, तो यकीन जाने कि इंशाअल्लाह ताला हमारे अंदर से ये बेराहवी जो है और ये गफलत खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। उसके बाद आयत नंबर 61 अल्लाह ताला ने कहा वा हुवल काहिरु फौका इबादिही, और वो अल्लाह जो है अपने बंदों के ऊपर गालिब है। वा हुवल काहिरु फौका इबादिही, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों के ऊपर गालिब है, मतलब अपने बंदों के ऊपर है, उसके ऊपर बंदे नहीं। ये वो छोटा सा लफ्ज़ है, छोटी सी आयत का टुकड़ा है, जो आज तुर्रम खान बने हुए हैं और आज जो है अपने आप को बहुत बड़े बादशाह सलामत बने हुए हैं, और जो गरीब गुरबा होते हैं, कुछ कीड़े मकोड़े समझ रहे हैं, वो समाज के लायक नहीं समझ रहे हैं, ज़िंदगी जीने के लायक नहीं समझते हैं। अल्लाह उन लोगों को कह रहा है कि तुम्हारे ऊपर हम बैठे हुए, तुम जिसको कमज़ोर समझ रहे हो ना, तुम भी कमज़ोर हो मेरे सामने, कुछ नहीं हो। वह काहिर फौका इबादी, देखिए गुनहगार बंदा हो या नेकोकार है तो अल्लाह का बंदा, तो अल्लाह के बंदे, इसमें तो कोई शक नहीं है ना। अब क्या होता है कि आमतौर पर अल्लाह जब किसी को कोई कामयाबी दे दे, कोई रुतबा, कोई ओहदा, कोई मकाम में मर्तबा दे दे, तो अब वो समझता है कि हमसे मतलब कि मैं ही बेहतर हूँ, मैं बेस्ट हूँ। अब जो हमारे मातहत में या हमारे अंडर में या हमारे नीचे जो तबका है, हम उनकी अहमियत को नहीं समझते। और हमारा रवैया देख ले, मजदूरों के साथ, नौकरों के साथ, गुलामों के साथ, कमतर जो पैसे के एतबार से हो चाहे जिस एतबार से, उनका रवैया देख लें कि हम इंसानियत के दर्स को भूले बैठे हुए हैं और उनको ये एहसास दिलाते हैं कि आप कमज़ोर हो और मैं मजबूत हूँ। अल्लाह ने कहा कि उसको, उन ऐसे बंदों को जिनकी सोच बनी हुई है, अल्लाह ने कहा कि तुम्हारे ऊपर तो हम बैठे हुए, बताओ क्या हमसे ज़्यादा कोई पावरफुल है, क्या हमसे ज़्यादा कोई ताकतवर है? आप देखिए मुसलमानों के मामला, हम लोग शादियों में जाते हैं दावत वगैरह खाने, जो खाना चला रहे तो लग रहा है कि वो हमारा गुलाम है और हम आका बनकर बैठे हैं। अगर जरा सा मिस्टेक करते तो उसको बख्शेंगे नहीं, हम छोड़ने वाले नहीं उसको। वो आएगा, वो सारी चीज़ें हमारे देखेगा, हमको हमारे क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, हमको क्या ज़रूरत है, ऐसे मतलब कि लहजे का फ़र्क होता है, लहजे का बातें देखिए कैसे होती है। हर साल नबी करीम 10 साल तक रहे, 10 साल तक रहे, बच्चे थे, छोटे थे, लगे रहते थे, खिदमत में लगे रहते थे। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि जाओ फला शख्स को बुला के लाओ। काफ़ी देर हो गई, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, कहाँ चले गए, बुलाता है ना, बुलाया ना खुद ही आया, आप ही निकल गए ढूंढने के लिए, कहाँ गया, देखिए बच्चों में खेल
बच्चे थे, बच्चे खेल रहे उसी में भूल गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। सलाम के बारे में हमारे मुआशरे में है कि छोटा बड़ा को सलाम करेगा। अगर फूफू आ गया सलाम नहीं किया तो खैरियत नहीं आपका, सलाम ना कर ले सर। बेटा को समझाओ, अपना बदतमीज हो रहा, हम रावे नहीं करेगा। तो हम जा रहे हैं, बताइए उसका फूफा बोल रहे हैं सलाम नहीं किया, इतना बड़ा पैसा कमा रहा है, ये जमीला घर में आपको करना होगा। आपकी अम्मी पकड़ के कर बाबू कर, सलाम कर तो फूफी भाग जाएगी। अजीब कंसेप्ट बनाए हुए जहन में हम लोग। बड़ा सलाम नहीं करेगा, छोटा सलाम करेगा। और जो बड़े हैं हम में सब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे जैसे हर तक खेल रहे, देख रहे वहाँ पे गए पकड़े सलाम कर सलाम, तो काम दिए थे हम जा अल्लाह के नबी को, कोई बात चलो। कितनी नरमी, कितनी नरमी। जैद बिन हारिसा का कौल है कि 10 साल मैंने खिदमत की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आज तक वो मुझ पर गुस्सा नहीं कर, काफी गुस्सा नहीं। हमने तो उठा वहीं पटक दिया, 2 घंटा से हमारा इंतजार बैठे खेल रहा है तुम, वहीं पटक दी उठा। देखिए शफकत क्या होती है, प्रैक्टिकल क्या होता है। आज शायद यही वजह है ना कि हमारे रवैये देख कर गैर मुस्लिम इस्लाम को बोली, हमें लग रहा है कि क्या वो दावत का काम नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, वो रवैये देख कर भाग जाए। रवैयों से हमारे क्या है, हमसे दूर होते चले जा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि वह काहिरु फौका इबादी, और वो अपने बंदों के ऊपर है। कोई भी बंदा, नेक बंदा हो, बुरा बंदा हो, अच्छा हो, जालिम हो, जो भी हो, वो सबके ऊपर है अल्लाह रब्बुल आलमीन। और ये बात हर इंसान को पता होनी चाहिए। जब इंसान इस बात को जान लेगा, बाखबर हो जाएगा, पता हो जाएगा, तो यकीन जाने की गारंटी कि उसके दिल से तकब्बुर निकल जाएगा। उसको पता चल गया ना कि मेरे ऊपर कोई है, मेरे ऊपर कोई है। आप देखिए ना, ड्यूटी वगैरह करते हैं, जो ओहदे होते हैं, फला है उसके ऊपर एक ऑफिसर है, उसके ऊपर एक ऑफिसर है, तो कितना खौफ रहता है कि मेरे ऊपर है, उसको जवाब देनी होगी, उसको रिपोर्ट करना होगा। डरता है कि नहीं डरता है? अल्लाह ने वही फॉर्मूला यहाँ पर अपनाया। जब अल्लाह सबके ऊपर है, गालिब है, कोई उसको मगलूब नहीं कर सकता। वो जिसे चाहे गालिब कर दे, जिसे चाहे तो मगलूब कर दे। तो ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि इंसान का रवैया, लहजा, उसका मामला बहुत नर्म होना चाहिए। नरमी हमारे ईमान में इजाफा पैदा करती है और हमारे आमाल में दुरुस्ती पैदा करती है। गर्मी सख्ती ये न सिर्फ ये कि हमारे ईमान को तबाह बर्बाद करती है, बल्कि हमें इसके लिए से जहन्नम में भेज देगी। क्या होता है, गुस्सा होता है, जुबान से जो आएगा बोल देगा, और ये जुबान से निकली बात इंसान को घायल कर देती है। बाद में आप कितना भी पछता है, लेकिन जब जिसको तकलीफ पहुंच गई, हो सकता है ऊपर से माफ करके अंदर से माफ नहीं। तकलीफ में अल्लाह ने कहा आगे, वयुरसिलु अलैकुम हफ़ज़तन, उस अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर अपना एक निगहबान दे दिया। तो निगहबान के मुराद फरिश्तों को लगा दिया। हमारे ऊपर है तो किरामत कातिबीन है ना, एक दाहिने कंधे पर है, एक बाएं कंधे पर है। अब दोनों को अल्लाह ताला ने कितना सोच के लगाया है। अल्लाह को पता था कि 2025-26 से मोबाइल आ जाएगा, इसलिए दोनों को लगा दिया। यहाँ पे है नेकी का फरिश्ता जो नेकी नोट करता है, और ये बुराई का फरिश्ता जो बुराई नोट करता है। अल्लाह जानता तो मोबाइल आएगा, वैसे मोबाइल देखेंगे, बस फरिश्ता के देखेंगे कहाँ देख रहा है। हमको लग रहा है कि रूम में बंद करके अंधेरे में कोई नहीं है, आप कुछ देख सकते हैं, फरिश्ता पीछे दोनों है, कंधों पर। कुरान देख रहे हैं कि हदीस पढ़ रहे हैं, कुछ और देख रहे हैं, कुछ गलत देख रहे हैं। अल्लाह ने ऐसी मतलब चीज पैदा की है कि इसको सामने ही रखना होगा, पीछे रख के नहीं दे सकते, फरिश्ता ना देखे। सोचिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा कि फरिश्ते ना देखे, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब जाइए अंधेरे में, रात में अपने कमरे में कुछ भी मोबाइल में देखिए, ये दोनों देख रहे हैं। अच्छी चीज़ देख रहे हैं, ये कलम चलाएंगे, यहाँ हदीस पढ़ रहे हैं, मुताला करें। गलत चीज़ देख रहे हैं, ये कलम चला देंगे कि भाई ये तो ऐसा काम कर रहे हैं, ये तो ऐसा काम कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वयुरसिलु अलैकुम हफ़ज़तन, हमने तुम्हारे ऊपर अपना निगहबान भेज दिया, निगहबान मुकर्रर कर दिया। हत्ता, यहाँ तक के इज़ा जाअ अहदकुमुल मौत, जब तुम में से किसी के मौत का वक्त आता है, तवफ़्फ़तहु रुसूलुना, देखिए यहाँ भी वफ़ात के लिए वही लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, तो हमारे फरिश्ते उसकी रूह निकाल लेते हैं। और उसके लिए भी गलत से फरिश्ता है, कई निगहबान, रूह निकालने के लिए आ जाएगी। वक्त आए मौत का, उसको रूह किसी से खींच लेंगे। वहुम ला युफ़र्रितून, जरा भी कमी नहीं की जाएगी, मोहलत नहीं दी जाएगी, ढील नहीं दिया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। वक्त आ गया मरने का, चले भैया कुछ जाना है ना। जिस इंसान का, जिस शख्स का मौत का वक्त आ गया, तो अल्लाह के यहाँ लिखित में है लोहे महफूज के अंदर कि हर इंसान के बारे में लिखा हो कितनी जिंदगी गुजारेगा, क्या होगा, उसको दुनिया से जाना हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मौत का वक्त आ गया,
अल्लाह ने फरिश्तों को भेज के जाओ रूह निकाल लो। फरिश्ते गए रूह निकालने, मूसा अलैहिस्सलाम ने एक तमाचा मारा, रूह निकालेगा, अगर मर भी नहीं करेगा रूह निकालेगा, आंखें फोड़, फरिश्ते की आंख फोड़, मार के तमाचा, कौन हो? तो फरिश्ते हैं, क्यों आए हो? तो अल्लाह ने भेजा, तो वक्त आ चुका है, उसको मार दी। अब उसका आंखें फूट गया फरिश्ता का, गए अल्लाह के पास, अल्लाह को सारी शिकायत की कि अल्लाह तुम तेरे बंदे के पास गए, रूह निकाले तो मार दिया, वो गिर गया, आंख फूट गई मेरी। अल्लाह ने अपनी रहमत से आंख ठीक कर दिया। और अल्लाह ने कहा जाओ कहो मूसा से कि जो दुम्बा या भेड़ होता है जिसके बाल होते हैं, मूसा अपने हाथ को उस दुम्बे के या उस भेड़ के जिस्म पर रखे और जितने रोआ यानी बाल निकलेंगे उतने साल की जिंदगी उनको बख्श दी जाएगी और बढ़ा दी जाएगी। और इससे फिर गए तो मुसलमान वाले तो बड़े बेशरम फिर आ गए तुम, अब क्या होगा? तो नहीं, पहले बात सुनिए, बाद में मानिए, पहले बात सुन लीजिए। अल्लाह ने कहा कि अगर आप किसी दुम्बे भेड़ के बदन पे हाथ डालिए, जितना बाल या रोमा निकलेगा आप अल्लाह ताला उतनी साल की जिंदगी आपको देगा। और भेड़ वगैरह बाल बहुत होता है, आप एक हाथ से निकालें तो 50-60 बाल आ जाए। फिर क्या होगा उसके बाद? ठीक है, हम ऐसा कर लेंगे, मानते हैं कि 100 बाल निकल गए, 100 साल की जिंदगी मिल गई, उसके बाद क्या होगा? उन्होंने कहा कि उसके बाद ही मरना है। तो चलो अभी ले चलते, तो मरना है चलो इतना बचेंगे, ये बहुत तारीखी जुमला है, याद रखिए। तो मूसा का उसके बाद फिर क्या होगा? फरिश्ते ने कहा उसके बाद आपको मरना है, मरना तो होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साफ साफ तो रहमान ने कह दिया कि वो यब का वजह रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम कुल्लु मन अलैहा फ़ान, कुल्लु मन अलैहा, जो कुछ दुनिया में सब फना हो जाएगी। फान मतलब फना होना, दुनिया में जो कुछ है सबको फना होना है, मतलब मरना है। इंसान जानवर हैवान जिसमें जान है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत का मतलब क्या होता है? हर इंसान को मौत का मतलब चलना नहीं है, इंसान तो सिर्फ हम लोग हैं। नफ्स का मतलब जिसमें जान है, हर जान को, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो घोड़ा हो, चाहे जानवर हो, चाहे कोई भी हो, जिसमें रूह है, जिसमें जान है, उसको मरना है। यब्का वज्हु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात, उसकी चेहरा बाकी रहेगा, जो अव्वल है जो आखिर है, कानून है। तो अल्लाह ने यहाँ बयान किया कि हत्ता इज़ा जाअ अहदकुमुल मौत, यहाँ तक कि जब तुम में से किसी की मौत का वक्त आता है, तवफ़्फ़त रुसुलुना, तो हमारे फरिश्ते उसके रूह कब्ज़ कर लेते हैं, उसके जिस्म से निकाल लेते, वो हम ला युफ़र्रितून, उनको जरा भी ढील मोहलत नहीं मिल जाती, जरा भी कोताही के साथ नहीं, फौरन वो निकाल लिया जाए। उसके बाद अल्लाह ने कहा है 62 सुम्मा रुद्दू इलल्लाह, देखिए फिर वही बात अल्लाह कह रहा है। ऊपर में क्या होगा? ऊपर में अल्लाह ने नींद के जरिया से मिसाल दी, तो अल्लाह नींद यानी मौत देता है, सुबह उठाता है, दोबारा चिंता करता है। अब अल्लाह ने कहा कि ठीक है फरिश्ते जरूर निकाल लेंगे, यानी अभी मर गया। अब उसके बाद क्या होगा? सुम्मा फिर रुद्दू इलल्लाह, तुम सब अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे। सब कहाँ जाओगे? अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे। मौला हुमुल हक, वो अल्लाह जो हम सबका मौला है, बरहक, सबका मौला पर अल्लाह रब्बुल आलमीन बरहक है, कोई शक नहीं। अला लहुल हुक्म, खबरदार सुन लो, फैसले वो भी सिर्फ अल्लाह ही के, वह हुआ असराउल हासिबीन, और अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्द से जल्द हिसाब लेने वाला है। ये समझ लो, जल्द से जल्द अल्लाह हिसाब लेने वाला है। आपको लग रहा है कि उम्र है क्या उम्र 40 साल है, शादी क्या, बाल बच्चे होंगे, दादा बनेंगे, नाना बनेंगे, बहुत से रिश्तेदारी निभानी, ये करना है। अल्लाह कह रहा है कि वक्त कब कहाँ किसी को मिले, मौत ने आज तक कभी किसी को वक्त नहीं मिला। जब मौत को आनी होगी वक्त मुकर्रर है, आकर रहेगी, कोई बचा नहीं सकता। और अल्लाह की कहना है कोई जल्द हिसाब लेने वाला है। इसका मतलब ये है कि हमें अभी से काम करना चाहिए कि अल्लाह जो गुनाह अब तक हो चुके अल्लाह उसको माफ़ कर दे और तौबा करे कि अल्लाह दोबारा गुनाह नहीं। अल्लाह कब किसको मौत दे दे, और मौत का मतलब अल्लाह के पास जाएंगे। देखिए कब्र के मरने के बाद का जो मामला है ना, इस दुनिया में क्या होता है कि हम मान लीजिए स्कूल में पढ़ते हैं तो रोजाना एग्जाम नहीं होता है, आराम से 2-3 महीना क्लास हुआ, फिर एग्जाम हुआ 6 महीने का, फिर 6 महीना हुआ तो सालाना एग्जाम हुआ, या 3 महीने पे यूनिट टेस्ट हुआ, कम से कम तो वक्फा मिलता है। हमारे मरने के बाद काउंट डाउन शुरू। अब ऐसा नहीं होगा कब्र उतारने के बाद अल्लाह फरिश्तों से एक काम को सोने दो, नहीं 2 महीना कब्र में, उसके बाद जाओगे, ऐसा है क्या? हदीस की इबारत है कि 40 कदम आदमी लौटते नहीं वापस के मुकर रखिए आ जाते हैं। तो दुनिया में क्या होता है कि हमारे पास वक्त मिल जाता है, कभी इम्तहान में वक्त है या कहीं कोई काम करना चाहते तो उसमें वक्त ले सकते हैं, जिसका काम करेंगे भाई 2 दिन का मोहलत दे दीजिए। लेकिन जैसे रूह जिस्म से जुदा हुई
काउंट डाउन शुरू। कितना टाइम मिलता है हमको? जब तक कि हमें गुस्ल देकर ना दफना दिया, इतना टाइम अल्लाह का मिलता है। आओ देखिए, अब आपके जहन में सवाल होगा जो पानी में डूब के मर जाते हैं, जल जाते हैं, उनकी बॉडी खत्म हो जाती है, खराब हो जाती है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहे हो दूसरी दुनिया में चले गए, उस दुनिया में अल्लाह उनके लिए हो सकता है कब्र बना दे, फरिश्ते दफना दे उसको। अब वहाँ सवाल शुरू, वहाँ शुरू, लेकिन सिर्फ जिस्म से रूह जुदा होने की देर है, अब काम शुरू। फरिश्ते काम पे, फरिश्ते रेडी रहते हैं, बल्कि तैयार रहते हैं और देखते रहते हैं कि अच्छा ये मिट्टी गिरा रहा है, जो छोड़ी बेलचा से कुल्हाड़ी से भी दबा जा रहा है, वो रेडी रहते हैं पूरा दम अपना बुरे बिस्तर लेकर, सवाल जवाब कॉपी कलम लेके रेडी, सब देख रहे हैं जो निकले पड़ेगा। सिर्फ 40 कदम, मेरे हिसाब से 40 कदम हम कब्रस्तान में मौजूद रहेंगे, बाहर भी नहीं निकल पाएंगे कब्रस्तान से। जैसे वहां से हटे, आखिरी आदमी वहां से हटा, परिचय पहुंचा, उठो उठो, क्या सो उठो, टाइम था दुनिया में कुछ करने का, नहीं की आज कल परसों तरसों महीने हफ्ते टालते रहे, उठो उठो, बैठो बैठो। अच्छा, ये भी बहुत दूर की बात हो गई। सही बुखारी की रिवायत है कि मुर्दे बोलते भी, सुनते तो बहुत दूर, बोलते हैं मुर्दे। जब मुर्दे को कफना कर जनाजे की नमाज पढ़कर दफनाने के ले जाते हैं, तो जो नेक रूह होता है ना, वो कहता है कि जल्दी ले चलो, जल्दी ले चलो, देर मत करो। मुर्दे बोलते हैं, सही बुखारी की रिवायत है। मुर्दे कहते हैं लेकिन सुनते नहीं, तो कहते हैं जल्दी ले चलो, बाद में इंतजार करोगे, वो आदमी नहीं आया, ये आदमी नहीं आया, हमको मेरा इनाम मिलने वाला है जिसका वादा अल्लाह ने दुनिया में किया था, उसको पता चल जाएगा। क्योंकि नेक रूह है, एक इल्लीन एक सिज्जीन है, रूह पहुंच जाती है इल्लीन में जो नेक होती है, जो सिज्जीन में वो रूह जाती है जो बुरी होती है। तो मुर्दे कहते हैं जो खाट को पकड़े रहते हैं, जल्दी करो, लोग भीड़ में फंस गए, यहाँ फंस गए, जल्दी करो, हमको दफना के निकलो यहाँ से, मुझे इनाम मिलने वाला है। और जो बुरी रूह होती है, बुरे इंसान होते हैं, वो कहते हैं हाय अफसोस, कहाँ ले जाए, हाय अफसोस, कहाँ ले जा रहे हो, मुझे ना दफनाओ, मुझे ना दफनाओ। और एक हदीस अल्लाह के रसूल ने कही कि अगर लोगों को पता चल जाए कि अजाब कब्र के बारे में, तो अपने मुर्दों को दफनाना छोड़ देंगे। समझ ले, अगर वो चीखे सुन ले इंसान, तो हर घर वाला, किसी को नहीं पता ना कि मेरे जो मैयत तो जन्नत में नहीं, जहन्नम में, मैं तो कोई नहीं जानता, एक उम्मीद हम देते हैं उनके साथ कि हमको अल्लाह के साथ का भरोसा किया है, आदमी जन्नत में इंशाल्लाह जाएगा। हर आदमी अपने मुर्दे के बारे में हुस्न ज़न रखता है, अच्छा गुमान रखता है। बुरी जो रूहें होती है वो कहती है भाई कहाँ ले जा रहा हूँ, ना ले जाओ मुझे, छोड़ दो मुझे, क्योंकि हम जाएंगे और आज़ाब इलाही में मुब्तला होना शुरू हो जाएंगे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है यहाँ पे, वो असराउल हासिबीन, वो जल्द हिसाब लेने वाला है। जल्द का मतलब यही हुआ, एक जल्द ये होता है कि अल्लाह दुनिया में भी हिसाब देता है, होता है ऐसा। अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है, अब कुछ उसके गुनाह है, अल्लाह जानता है कि अगर मर के जाएगा तो वहाँ पे हमको सबके साथ हिसाब करना होगा, और गुनाह किया तो सजा मिलेगी उसको। तो अल्लाह को बंदा बहुत पसंद आता है, उसकी जो अमाल है, नेक अमाल अल्लाह को बहुत पसंद आता है। अब लेकिन उसके पास कुछ गुनाह है, तो मिट नहीं रहे हैं, तो अल्लाह उसको मुसीबत में मुबतला करता है दुनिया के अंदर। जवान बेटा छीन लेगा उससे, ये भी मुसीबत है। लगी लगाई नौकरी खत्म कर देगा अल्लाह, अर्श से फर्श पर आ जाएंगे। अल्लाह दुनिया में सजा दे, कोई ना कोई सजा अल्लाह को वो जानता है कैसे देना है, कोई ना कोई अल्लाह सजा दे। अब हमको लगता है हमारे मुसीबत है, उसके पास नहीं है। अल्लाह के बंदे मुसीबत पर खुश हो कि अल्लाह ने शायद हमारे कोई गुनाह थे जो मिट नहीं रहे थे हमारी नेकियों से, तो अल्लाह ने दुनिया ही में ये सजा दे दिया। और उस सजा से वो हदीस याद रखें कि जब एक मोमिन को एक कांटा भी चुभता है ना, तो अल्लाह उसके जरिए से उसके गुनाहों को मिटा देता है। सोचे, मुसीबत भी रहमत है, जहमत नहीं। अल्लाह देखता है कि बंदा बड़ा नेक है, इसको हम जानना मिलता है, लेकिन कुछ गुनाह है मिट नहीं रहे। अन्ना ही वो दुआ अल्लाह से मांग रहा है कि अल्लाह हमारे गुनाहों को मिटा दे। इसीलिए इस्तिग़फ़ार हमेशा करना चाहिए, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, हमेशा खले होकर करनी चाहिए। तो अल्लाह मुसीबत दे देता है कि काम करो, अपने उस गुनाह की सजा दुनिया में काट लो। किस कदर मुसीबत में डाल देगा, उसकी ईमान की आजमाइश भी होगी और उसके गुनाहों की कफ़ारा बन जाएगा। अब मरने के बाद आएगा तो पता चला कि मुसीबत में से गुनाह कट गया, अपनी नेकी जन्नत में भेज देगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत में डाल देगा। तो जल्द हिसाब दुनिया के अंदर भी होता है, न सिर्फ के मरने के बाद, दुनिया के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला जल्द हिसाब लेता है, इन्हीं शक्लों में, इन्हीं सूरतों में। तो हमें इस सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि जो है ना, थोड़ी सी अल्लाह मुसीबत देता है, हम घबरा जाते हैं, शिकवे शिकायत और इधर की बात उधर, और ये घबराहट और जो है उजलत जल्दबाजी अलग जल्दी से ख़त्म कर दे, परेशान हो जाते हैं, कैसे आ गया, जबकि हमें वापस सब्र की
ज़रूरत है, अल्लाह मुसीबत है तो सब्र करे, और अल्लाह जब नेमत है तो शुक्र अदा करे। आगे अल्लाह ने कहा कुल, ऐ नबी आप कह दीजिए, आयत नंबर 63 के अंदर, कुल ऐ नबी कह दीजिए, मैं युनज्जीकुम मिन ज़ुलुमातिल बर्र वल बहर, बहर कहते हैं समंदर को, और बर कहते हैं खुशकी को, जमीन को। अल्लाह ने कहा बर्र और बहर की तारीकियों में कौन तुमको निजात देगा। एक आदमी जमीनी पर है लेकिन तारीख जगह पर है, ऐसी जगह भटक गया रास्ता, कुछ आस पास डर गया, या खौफ के माहौल में, जंग के माहौल में, इसके लिए तारीकी है। तारीकी इसमें सिर्फ अंधेरा नहीं है, उजाला है लेकिन जिंदगी में खुशियाँ नहीं। उजाला है, घर में लाइट है, लेकिन दिल में उदासी है, दिमाग में परेशानी है, मुसीबत जो है घेरे हुई है, तो इसको कहते हैं कि उजाले में अंधेरा। ये उजाला नहीं है उस आदमी के लिए। अल्लाह कह रहा कौन निजात देगा। जमीन में या समंदर में अगर कोई आदमी मुसीबत में है, तारीकी में, तो कौन उसको निजात देगा। ये इस्तिफहामिया जुमला है, इसको हम कहते हैं क्वेश्चन मार्क, सवालिया निशान। ये अंदाज अपनाया अल्लाह रब्बुल आलमीन। कौन तुमको, मैंने कहा कुल नबी कह दीजिए, पूछिए इन लोगों से कौन तुमको निजात देगा अगर तुम जमीन और समंदर की तारीकियों में चले जाओगे। तदऊनहु तदर्रुअन व खुफियतन, और तुम उसको पुकारते हो गिड़गिड़ा कर और खुफिया तौर पर। बहुत सारे अल्लाह के बंदे हैं, देखेंगे तन्हाई में अपने घर के अंदर रात में उठते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, बड़ी रोते हैं अल्लाह के सामने, बहुत रोते हैं। वो इंसानों के सामने नहीं रोते, अल्लाह के सामने। क्या है, क्या अल्लाह के पास कौन सी चीज़ नहीं दे सकता अल्लाह। सारे खजाने अल्लाह के पास। दुनिया में इतनी मानो दौलत है ना, अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं। ऐसा नहीं कि अल्लाह ने सबको दे दिया तो खजाना कम पड़ गया, 50% कम पड़ गया, 20%, कुछ भी कमी नहीं। इतनी मानो दौलत दुनिया वालों को देने के बाद अल्लाह के खजाने में कमी नहीं है। तो बहुत से अल्लाह के बंदे क्या करते हैं, वो रात पूछते हैं, वजू बनाते हैं, कुरान पढ़ते हैं, नफिल पढ़ते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं और रोते हैं अल्लाह के सामने कि अल्लाह सारी चीज़ें तेरे हाथ में, तू चाहे तो पलक झपकते काम बन जाए। कुरान में है ना कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी काम को करने के इरादा करता है, कहता है कुन, कुन मतलब होता हो जा, और यकुन तो हो जाता है। अजान हो रही है, इंशाअल्लाह तो दोबारा दर्स को अजान के बाद शुरू किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कुल मैं युनज्जीकुम मिन ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहरि तदऊनहु तदर्रुअन व खुफिया। है नबी, आप कह दीजिए कौन है जो तुमको बर और बहर की तारीकियों में निजात देगा, यानी जहन्नम से निजात देगा, तकलीफ से निजात देगा, परेशानी से निजात देगा, दुश्मन के खौफ और शर से निजात देगा। कौन है जिसको तुम खुफिया तौर पर और गिड़गिड़ा कर आजिज़ी के साथ पुकारते हो। लइन अनजान मिन हाज़िही, अगर हम इससे तुमको निजात दे देंगे, लनकुनन्ना मिनश शाकिरीन, तो क्या है, हम शुक्रगुजारों में से होंगे। शुक्र का अल्लाह ने इसी इस्तेमाल किया। जाहिर सी बात है कि जब कोई नेमत अल्लाह की तरफ से मिलती है तो शुक्र बजा लाया जाता है। अगर आप खौफ के माहौल में, अल्लाह ने खौफ के माहौल से निकाल दिया, नेमत है, हम अमन के माहौल में आ गए, सुकून के माहौल में आ गए, इस पर भी अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाना चाहिए। उसके बाद अल्लाह खुद ही जवाब दिलवा रहा है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आयत नंबर 64 के अंदर, कुलिल्लाह, नबी कह दीजिए कि अल्लाह। इससे पहले, इससे कबल वाली आयत में अल्लाह पूछवा रहा है नबी से, पूछिए कौन तुमको निजात देगा। उसके बाद जवाब भी अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह ताला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिलवा रहा है, कुलिल्लाह, नबी कह दीजिए अल्लाह। अल्लाह है जो हमको जमीन और समंदर की तारीकियों से निजात देगा। अल्लाह है युनज्जीकुम मिनहा, जो तुमको उससे निजात देगा, और मिन कुल्लि कर्ब, हर गम से निजात देगा। हर गम अल्लाह ने कहा, मिन कुल्लि कर्ब, कोई भी गम हो, जिसके साथ जो भी गम हो, उस गम से निजात कौन देने वाला है, अल्लाह ताला देने वाला है। जब अल्लाह निजात देगा तो अल्लाह की तरफ जाना पड़ेगा। जिससे आपको काम है, जिसमें पास जाएंगे ना, तो अल्लाह ताला को अपने गम खत्म करवाने अल्लाह से, तो अल्लाह पर जाना होगा, झुकना होगा, रोना होगा, गिड़ाना होगा, तो अल्लाह ताला क्या करेगा, उससे निजात दे देगा। सुम्मा अंतुम तुशरिकून, फिर भी तुम शिर्क करते हो। अल्लाह ने कहा फिर भी तुम शिर्क करते हो। सोचे कि अल्लाह ताला एक मुसलमान को हर मुसीबत से निकाल दे रहा है, गम से निजात दे रहा है, फिर भी वो शिर्क करता है। सोच लिए, अंदाज़ा लगाए कि परेशान थे तो अल्लाह को पुकारे, हम पुकारा हमने अल्लाह को, अल्लाह ये परेशानी है, ये आलम है, ये मामला है, ये परेशानी, ये दिक्कत, ये मुसीबत, अल्लाह निकाल दिया। चलो मेरे बंदे ने पुकारा मुझे, जब निकल गए थे, बजाय इसके कि अल्लाह की शुक्रगुजारी कर हमने क्या किया, शिर्क करना।
شرک میں مبتلا ہو گیا, اللہ نے جو انداز اپنایا پھر بھی تم شرک کرتے. یعنی ہم کہتے ہیں نا کتنا تمہارے ساتھ ہم بھلا کرتے پھر بھی تم ہم کو چھوڑ دیتے, نہیں پوچھتے. ایک انداز ہے قرآن کا. یعنی اللہ کو تکلیف ہوتی ہے شرک کرنے سے, اللہ کو تکلیف ہوتی ہے کہ اللہ اکیلا تنہا عبادت کے لائق ہے اور اس کی جگہ کسی اور کو معبود بنا لیا. اللہ نے اکیلے پریشانی دور کر دی ہماری, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے پریشانی دور. سب کیا ہے؟ سب شرک ہے. وَأَنْتُمْ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ, پھر بھی تم شرک کرتے ہو. آج کا درس یہیں پہ مکمل ہوا. سورہ انعام آیت نمبر 64. اگر کوئی سوال ہو آن لائن ہو رہا ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. جیسے خواب کے بارے میں اسلام کا خواب کے بارے میں اسلام کیا ہے؟ کیا ہے سوال یہ کہ خواب کی کیا حقیقت ہے اسلام میں, شریعت کے اندر کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے خواب جو ہے جس کو ہم سپنا بھی بولتے ہیں, نیند کی حالت میں انسان اپنے بستر سے کہیں اور چلا جاتا ہے, روحانی طور پہ, جسمانی طور پہ, اس کو خواب کہا جاتا ہے. خواب میں کیا ہے کہ انسانوں میں جو نبی ہیں تو نبی کے خواب سچے ہیں. نبی جو خواب دیکھ لے وہ بھی اللہ کے وحی کا ایک حصہ ہے. وحی کس کو کہتے ہیں؟ جیسے اللہ نے قرآن کو نازل کیا نا, تو قرآن کو اللہ نے نازل کیا جبریل کے ذریعے. اللہ نے جبریل کو آیت دی اور جبریل لے کر کہاں چلے گئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ایک یہ وحی ہے. دوسری وحی کا ایک حصہ یہ ہے کہ خواب, اللہ تعالیٰ پیغمبر کو, نبیوں کو خواب میں کوئی چیزیں دکھاتا ہے تو نبیوں کا خواب سچا ہوتا ہے کیونکہ وہی الہی ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا, انی رأیٰ فی المنام, میں نے نیند کی حالت میں دیکھا کہ ان تذبحک, میں تم کو ذبح کر رہا ہوں. چونکہ حضرت ابراہیم پیغمبر تھے, پیغمبر کا خواب کیا ہوتا ہے؟ سچا ہوتا ہے. یعنی اللہ نے خواب کے ذریعے حکم دے دیا کہ ابراہیم تم اپنے بیٹے کو ذبح کرو. ایک ہوتا ہے عام آدمی کا خواب. اب خواب کے بارے میں جو روایات ہے, جو احادیث آتی ہیں, اس کو بالکل سہل انداز میں, آسان الفاظ میں سمجھ لیں کہ ایک خواب کا طریقہ ذریعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جس چیز کے بارے میں زیادہ سوچتا ہے اسی کو دیکھ لیتا ہے, جس چیز کے بارے میں زیادہ ڈرتا ہے اسی کو اپنے خلاف دیکھ لیتا ہے. خواب میں بات خواب کی ہوتی ہے. خواب کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نبوت کا ایک حصہ ہے خواب جو ہے, اس کو بعض انسانوں کے ساتھ سچائی میں دکھاتا ہے. کبھی کبھی ہم لوگوں کو خواب بھی سچ ہوتے ہیں, کبھی کبھی, ہمیشہ کبھی کبھی. آپ کبھی دھیان دیں تو آپ نے آج سے 10 سال پہلے جو خواب دیکھے آج اس کو آپ پا رہے ہیں, تو آپ کے پاس سے آپ کو یاد آ جاتا ہے کہ تم نے دیکھا تھا, ذکر نہیں کر پاتے کہ بھول چکا, 8 سال ہو گیا, 10 سال ہو گیا, لیکن لگتا ہے ذہن میں کہ ایسی کوئی تذکرہ ہوا تھا ہماری زندگی میں جسے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں. وہ خواب ہی ہوتے ہیں جو کبھی پہلے ہم نے سوچتے تو آج کو اللہ نے دکھا دیا یا پورا کر دیا. یہ بھی ایک خواب کی شکل ہوتی ہے کہ جس چیز کی, جس چیزوں میں, کسی چیز کی تلاش میں ہم رہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ خواب کے ذریعے اس چیز کو کامیابی میں ہمیں دکھا کر بدل دیتا ہے. اسی طرح حدیث کے اندر ہے کہ اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. جسے خواب میں دیکھے کہ ہم مر گئے یا ہمارے کوئی رشتے دار مر چکے ہیں, خواب میں پریشان ہو جاتے ہیں, آنکھ کھلتی ہے, کرتا ہے الحمدللہ سب تو دیکھنے میں گھبرا جاتا ہے کیونکہ ہم خواب میں ایک زندگی جی رہے ہوتے ہیں اور سب کچھ ایک منظر ہوتا ہے, وہاں پہ ایک نظارہ ہوتا ہے. اب ہمیں لگتا ہے کہ جائی کیا ہو گیا, جب تک سب کچھ تو ٹھیک ہے سونے کے پہلے. پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ برا خواب دیکھنے کی اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ خواب میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ جلدی سے جگا دیں تاکہ ہم ہوش میں آ جائیں. یہ سب صورتیں ہیں. اب اس پہ چیز یاد رکھیں, خواب کی تعبیر. خواب کی تعبیر کیا ہے؟ یہ تعبیر ہر کوئی نہیں بتا سکتا. خواب کی تعبیر ہر کوئی نہیں بتا سکتا جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ صفت سے نوازا, جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام یہ خواب کی تعبیر بتاتے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ میں سکر میں, بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہوں, کیا مطلب ہوا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کا مطلب تمہارا ایمان مضبوط ہے اسی سکر کی طرح, جیسے بیڑیاں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتی تو تمہارا ایمان ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے. آج کل کے دور میں بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے خواب کی تعبیر بتانا ہے, لیکن 99% چھوٹے لوگ ہیں, یہ صرف آپ کو گمراہ کرتے ہیں, آپ کو ڈراتے ہیں, خوف پیدا کرتے ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے خواب کسی کو پتہ نہیں ہوتا. اچھا خواب ہے تو اللہ دعا کر کے اللہ یہ ہو جائے, اور آدمی جانتا ہے اس کی سننے میں کیا چیزیں بہتر ہے. برا خواب ہے تو اللہ سے پناہ مانگ لے کہ اللہ کو اس طرح کی چیزیں بچا کے رکھنا میں بولوں. یہ اصل ہے خواب کی شارٹ میں وجہ سے حقیقت. جب رات میں کبھی سوتے سوتے برا خواب آتا ہے, نہیں کھل جاتا, تو اس وقت کیا کریں؟ ابھی ایک سوال کیا, اگر کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لے, ہوتا ہے کہ آدمی کچھ ایسے خواب دیکھ لے ڈر جاتا ہے, گھبرا جاتا ہے,
तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि बाएं जाने की झुका है, जो दाएं तरफ ये बाएं तरफ है, इस तरह की दुआ करते हैं। और उसकी दुआ है, दुआ पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व अला कुल्लि शैइन कदीर। अगर ये चीज़ें पढ़ेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की निजात है। इसीलिए बुरा ख्वाब बनाए तो सोने के जो आदाब हैं उसको फॉलो करें हम। सोने से पहले वज़ू बना लें, वज़ू बनाकर सोए। सोने से पहले कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, इसको मुअव्विज़तैन कहते हैं। सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी और सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत पढ़कर दाहिने कबर सोए। ये सोने के जो आदाब है ताकि कोई शैतानी हरकत या बुरा ख्वाब जो है ना आए। हम सर बोल रहे हैं जो बंदे ना बताए मुझे लिखता है दुआई लिखता है जिन्नात है फरिश्ता फरिश्ता ये बहुत सा इसी और जिन्नात होता है तो उसका पास्ट बताता है लेकिन उधर वहाँ जाता है यहाँ से जाता है ऐसा कैसे इसके लिए मुझे अकेले में अगर काम करता तो दोनों देखिए, आपका जो सवाल है कि जो कांधे पे अल्लाह ने कहा कि रामन का, लेकिन इसके बारे में है कि जिन्नात के फरिश्ते हैं, तो अल्लाह ने फरिश्तों को मुकर्रर किया, जिन्नातों पर नहीं। जिन्नात को कैसे मुकर्रर करे? जिन्नात इंसान के अमल को चेक करेंगे, फरिश्ते वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नात और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। फरिश्तों के बारे में अल्लाह ने नहीं कहा, फरिश्ते तो ऑलरेडी ऑटोमेटिक इबादत कर रहे हैं। अल्लाह ने कहा ना फरिश्तों से कि मैं इंसान को बनाने वाला हूँ, तो फरिश्ते का अल्लाह क्यों बना रहा है? नानु नुसब्बिह होगा, हम तुम्हारी तस्बीह बयान करते हैं, तो तेरी इबादत करते हैं, ये आएंगे कत्ल गारतगिरी करेंगे, मारपीट करेंगे। अल्लाह ने कहा कि मैं तो जानता हूँ, तुम नहीं जानते। नाक कैसे बैठाएगा नजर? नाक पे तो नजर रखने गया है। तो टीचर एग्जाम देगा, स्टूडेंट क्या करेगा? सुने कि स्टूडेंट टीचर के एग्जाम दे रहा है, आप एग्जाम को हम देखेंगे, ठीक है सर? अगर शहादत की तमन्ना रखने से भी मैंने नॉर्मल अगर किसी को मौत भी आती है तो उसको शहादत का दर्जा हाँ, हदीस है ना कि तिरमिज़ी की रवायत है कि अल्लाह के सवाल में कहा कि सवाल ये कि क्या शहादत की तमन्ना रखेंगे और उसी तमन्ना में नॉर्मल मौत मुझे कि क्या हम शहीद कहलाएंगे? बिल्कुल कहलाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि हर मुसलमान ये सपना रखे, ये शौक रखे, सिर्फ शौक ना रखे। जैसे आजकल के ज़माने में बहुत इन्फ्लुएंस चला गया, शौक रखे यार जंग हो जाए तो हम निकल जाए, पता चला जंग हो जाएगी तो भाग गया। कहाँ हो रहा है? तो नियमत पर पता चला बिहार में, आ ही नहीं पाएंगे, गाड़ी बहुत भीड़ जा रही है, टिकटें नहीं मिल रहा है, माहौल फाका है, तमन्ना रख रहे हैं अल्लाह शहीद करते, अल्लाह शहीद करते, अल्लाह वक्त आ गया तो भाग, वक्त आ गया तो भागिए। ऐसी क्योंकि अल्लाह नियत को जानता है, अल्लाह दिल की नियत को। लेकिन सचमुच में हमें शहादत चाहिए। एक हदीस है ना कि एक आदमी तहज्जुद की नियत करता है रात को कि हम तहज्जुद की नमाज पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, लेकिन सो के सुबह में उठा, अल्लाह उसको पूरी रात नमाज पढ़ने का सवाब देगा। नियत को देखा, तो हमेशा नियत रखिए कि अल्लाह जब मौत तो बहक है तो मौत दे तो शहीद हो सकता है, नॉर्मल मौत भी अल्लाह शहादत का दर्जा है। फिर यार जब आपने शिफ्ट के बारे में बताया तो एक भाई का ऑनलाइन सवाल है कि सिर्फ कितने टैक्स भी होते हैं और इसमें कितना पार्ट और नपाट सिर्फ कई टाइप्स वगैरह हैं। और कितना देखिए, सवाल ये कि शिर्क की कितनी किस्में हैं तो कौन कौन सी हैं, कितनी तरह के शिर्क होते हैं? देखिए, शिर्क जो है, शिर्क की 2 किस्में, एक है शिर्क अकबर और दूसरा है शिर्क असगर। अकबर बड़े को कहते हैं, असगर छोटे हो जाते हैं, इसी से कबीर और सगीर, कबीर बड़ा सगीर छोटा। और एक होता है अकबरुल कबायर। ये शिर्क में नहीं होता है, अकबर की एक किस्म होती है अकबरुल कबायर, यानी बड़ों का बड़ा, बड़े में भी बड़ा, बड़े में भी बड़ा होता है। मेरे 2 चीज़ें समझे, शिर्क अकबर और शिर्क असगर। शिर्क अकबर वो शिर्क है जो तौबा किए बगैर मर गए तो जहन्नम चले गए, माफ नहीं, इसके लिए तौबा शर्त। शिर्क असगर ये है कि ये हमारे वज़ू बनाने से या हमारे पछता लेने से अल्लाह माफ करे। दिल में पछतावा पैदा हो गया ना, तौबा करके नहीं किया, अल्लाह माफ करे, इसको छोटा शिर्क कहा जाता है। तो इस शिर्क अकबर के लिए तौबा शर्त है कि हमें हर हाल में तौबा करना होगा, अल्लाह बहुत शिर्क हमने किया, अल्लाह माफ कर, जाने जाने जो भी किया अल्लाह माफ कर, अब दोबारा नहीं करेंगे। तो शिर्क के 2 किस्म है। अकबरुल कबायर एक आता है, गुनाह में बड़ा गुनाह, वो उसका ताल्लुक गुनाह से, गुनाह कबीरा, गुनाह सगीरा, उसमें आता है अकबरुल कबायर। अकबरुल कबायर की जिक्र इसलिए हमने किया कि अकबरुल कबायर में 1 नंबर शिर्क का ही आता है, यानी शिर्क से बड़ा कोई गुनाह नहीं, इससे बड़ा कोई गुनाह ही नहीं। आप कोई भी गुनाह उठा लीजिए तो उसके सामने छोटा है, शिर्क के सामने छोटा है, इसीलिए अकबरुल कबायर का हमने जिक्र किया। तो शिर्क 2 किस्म है। कोई इंसान अगर
अल्लाह अकबर नहीं रखा हुआ है लॉकेट अगर पहनता है तो क्या उससे देखिए सवाल ये कि अगर कोई लॉकेट पहन है जिसमें अल्लाह ऊपर लिखा हो या सिर्फ अल्लाह ही लिखा हो, रहमान लिखा हो, रहीम लिखा हो, सब तो अल्लाह ही है, तो क्या सबसे पहले सवाल ये क्या पहनना जायज़ है? अगर जायज़ नहीं तो क्यों? ये सवाल असल में ऐसा होना चाहिए। जी अब ये कि लॉकेट जो है अल्लाह हो, तो इसका जवाब ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अंगूठी थी जो आप पहनते थे और उसमें मोहम्मद जो है नसब नाम लिखा हुआ है। तो आप जब बातों में जाते तो उसको निकाल देते कि पाकीज़ा नाम गंदी जगहों पे ना जाए, है ना। अब उसके बाद जब पता चला कि एक अंगूठी जिस पर मोहम्मद लिखा था, उसका मतलब उस ज़माने में ऐसे जेवर बनते जिस पर अल्लाह भी लिखा जा सकता है ना, बनते। आपने नहीं पढ़ा, नहीं पहना, ना कभी सहाबा को किसी को पहनने का हुक्म दिया। भाई एक मोमिन के लिए अल्लाह उसके दिल में है, हम लॉकेट पे क्या अल्लाह लाएंगे? एक ईमान वाले की अल्लाह उसके दिल में है, 24 घंटा उसके साथ है। ना अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम अपने बंदे के सहरत से भी ज़्यादा करीब है, ये अल्लाह ने कहा कुरान के अंदर। तो आपने उतार दिया इसलिए कि आपको नहीं पता था कि नबी जगह पर इसको नहीं लिया जा सकता। इसी तरीके से हम लॉकेट पहनते अल्लाह मोहम्मद का रसूल का, तो हम तो बाथरूम में जाते हैं, कौन उतारेगा बाथरूम? हम यहाँ ट्रेन में गया हावड़ा स्टेशन, बाथरूम पेशाब बहुत जोर के लगते हैं, वहाँ कहाँ उतार के हम रखेंगे? हम किसको देंगे? इसी बात की चीज़ें पहननी इसलिए नहीं चाहिए कि रखनी नहीं पहना। अंगूठी का जिक्र आता है तो लॉकेट का जिक्र आना चाहिए था, नहीं आता तो बनवा लेते आप पहन लेते, है ना। आपने नहीं पहना, नहीं पहनने की वजह यह है कि अल्लाह का खौफ या अल्लाह की बंदगी का मतलब होता है कि आपके दिल से, चीज़ें दिल से और कुछ नहीं। इसीलिए जिस चीज़ का जवाब मौजूद नहीं है, क्या अगर हम अल्लाह का लॉकेट नहीं पहनेंगे तो क्या मेरे दिल बनना नहीं है? सवाल नहीं। दूसरी बात कि एक चीज़ हम करना चाह रहे हैं अच्छा समझ के, कहीं बिदअत की शक्ल में क्या कर रहे हैं, भाई हम पहन रहे हैं, इमाम साहब पहने तो हम भी पहन सकते हैं। तो ये भी इसी वजह से नहीं पहनना है कि हमारे वजह से आपके लिए दुरुस्त है, आप ठीक पहन के हमको शौक है अल्लाह का नाम वाला पहन, एक बात बता। लेकिन आपको देख के अगर ये रिवाज बन गया कि बिदअत का शक्ल इख्तियार कर जाए, फिर आप इसके गुनहगार हैं, आपकी वैसी चीज़ें बढ़ी, इसे नहीं पहननी चाहिए।